Hello everyone, today we will be dealing with the recovering of possession of property, right? That covers from section 5 to 8, right? This is a topic in the specific relief act, right? In the part 2, right? We have already covered the part 1, that is preliminary part, that is section 1 to 4 in the previous video, right? There is a third part, that is preventive relief, that covers from section 36 to 44, that we will be covering in the future videos. Okay, now let's see the part 2 of specific relief act, that covers from section 5 to 35. Today we will be covering this chapter 1, that is recovery of possession of property from section 5 to 8. In further videos, we will be seeing the chapter 2 that talks about specific performance, chapter 3 about rectification, chapter 4 about recession, chapter 5 about cancellation, and chapter 5 about declaratory decrees. Right. Let's see chapter 1 first. So chapter 1 talks about recovering the possession of property. It covers from section 5 to 8. Okay, section 5 and 6 talks about immovable property, and section 7 8 talks about movable property, right? Now let's see section 5. Section 5 talks about recovery of specific immovable property, right? So what section 5 is saying, that a person entitled, so a person who is entitled to the possession of specific immovable property may recover it in a manner provided in the code of civil procedure, right? So the section 5 is basically saying the person that who is entitled for the possession of immovable property may recover it, right? When we read this section 5 with article 65 of limitation act, right, and article 64 of limitation act, it gives two interpretation, right? Let's read article 6, what article 65 is saying. Article 65 is saying that the possession of immovable property, so if there is a suit for possession of immovable property, right, it will property or any interest therein based on title. So this article 65 suit, so whenever you are filing a suit under article 65 of limitation act, it will be based on title. It is clearly written, it will be based on title, right? When you will read article 64 of limitation act, it is saying a suit for possession of immovable property. So there is a suit for possession of immovable property based on previous possession. So the suit is based on previous possession. See, it is based on previous possession, right, and not on title. So it is not based on title, but it is based on previous possession. Meaning is, it is specifically based on the previous possession, that is settled possession, right? The possession has to be a settled possession, meaning thereby that the plaintiff is living in that property or is in settled possession for a long period of time. That period is not fixed, but it gives the idea to the court that a person is in settled possession. Okay, one thing, if the suit is based on title, it can be based on two things. So what does title mean, right? If I have a property and I have a title of it, meaning is I have ownership of it. What I am the owner of that property, so I have ownership. So it can be based on, so you are a owner, you are bringing article 65 suit, correct? One other thing is that the title can be derived or obtained by some legal process. So you have, by some legal process, you have obtained a title which allow you to file suit, right? What is this legal process? Like for example, there is a tenancy agreement, right? You are a tenant, ठीक है? So let's say you are a tenant, I am a landlord. तो अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आप टेनेंट हो, ठीक है? तो कोई टेनेंसी एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में. तो आप टेनेंट हो, तो आपको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन बाय वर्च्यू ऑफ टेनेंट मिल रहा है, तो वो आपका टाइटल है, राइट? जिसकी वजह से आप उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड हो, एंड फॉर दैट, एंड बिकॉज आपको उस प्रॉपर्टी के पोजेशन से डिस्पोजेस किया गया, इसलिए आप आर्टिकल 65 का सूट ला रहे हो, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, जो आर्टिकल 64 का सूट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? वो बेस्ड है प्रीवियस पोजेशन मतलब वो एक सेटल्ड पोजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो पहला डिफरेंस जो आर्टिकल 65 सूट में है और आर्टिकल 64 सूट में यही है कि जो आर्टिकल 65 सूट है वो बेस्ड ऑन टाइटल होता है, और आर्टिकल 64 सूट जो होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन. तो आप
जब आर्टिकल 65 सूट लाते हो तो आप रिकवरी ऑफ पोजेशन मांग रहे हो बेस्ड ऑन टाइटल, और जब आर्टिकल 64 लाते हो तो आप प्रीवियस पोजेशन मांग रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सेटल्ड पोजेशन। ठीक है, दोनों का लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स ही है, आप चाहे आर्टिकल 65 सूट फाइल करो या आर्टिकल 64। बट एक चीज़ का डिफरेंस है, क्या ये जो लिमिटेशन पीरियड होता है कब किक इन करता है? जब आप आर्टिकल 65 सूट फाइल करते हो तो ये उस दिन से आप लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है जब पोजेशन एडवर्स हो गया हो, पोजेशन एडवर्स हो गया हो, ठीक है, उस दिन से। लेकिन जब आप आर्टिकल 64 सूट फाइल करते हो तो जब आप प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कराया किए जाते हो उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, राइट। अब एडवर्स पोजेशन का क्या मतलब जब से जो पोजेशन है वो एडवर्स हो गया उसका क्या मतलब है? लेट्स से मैंने अपने एक दोस्त को प्रॉपर्टी दिया कि भाई ये मेरा घर है, तू रह इसमें, तू रह ले, ठीक है। तो मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दिया। कुछ टाइम बाद मेरा मन हुआ कि भाई मैं अपने घर में वापस शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई अब तू घर खाली कर दे, ठीक है, अब मैं इस घर में रहूँगा, ठीक है। बट वो बोला नहीं भाई मैं नहीं खाली करूँगा, जो करना है कर ले। अब जब मोमेंट उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं खाली कर रहा, जो करना है कर ले, उस दिन से उसका पोजेशन एडवर्स हो गया। पोजेशन मैंने ही दिया था उसको उस प्रॉपर्टी का, बट अब उसने मुझे वापस पोजेशन लेने से मना कर दिया, तो अब पोजेशन एडवर्स हो गया है, ठीक है। अब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल 65 सूट फाइल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये होगा उसमें यूजुअली कि भाई जो प्लेंटिफ होगा वो हमेशा टाइटल प्रूफ करेगा, क्योंकि वो उसका सूट टाइटल पे बेस्ड है, और डिफेंडेंट बेटर टाइटल प्रूफ करेगा। अगर डिफेंडेंट बेटर टाइटल प्रूफ कर देता है तो उसके फेवर में सूट डिसाइड हो जाएगा। जब आप आर्टिकल 64 सूट लेके आ रहे हैं तो पहली चीज़ जो हो रही है, क्योंकि आपका सूट जो है टाइटल पे बेस्ड नहीं है, प्रीवियस पोजेशन पे बेस्ड है, तो प्लेंटिफ जो है वो पहले सेटल्ड पोजेशन बोलेगा कि भाई मेरे पास सेटल्ड पोजेशन था प्रॉपर्टी का और मुझे उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, ठीक है। तब डिफेंडेंट जो है अगर मान लो उसके पास टाइटल है और वो टाइटल प्रूफ कर देता है, तो प्लेंटिफ जो है उसको बेटर टाइटल प्रूफ करने पड़ेगा अगर उसको अपने फेवर में सूट डिसाइड करवाना है तो। लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ करवाता बेटर टाइटल तो ये डिफेंडेंट के फेवर में सूट डिसाइड हो जाएगा। यही है सेक्शन 5 बेसिकली। जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन 5 और 6 दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब आप सेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी यही हो रहा है कि आप डिस्पोजेस्ड हो और आप जो है प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, आप पहले पोजेशन में थे, ठीक है, अब आपको डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है, बिना आपकी कंसेंट के किया गया है, ठीक है। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब एक लॉ ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है आपको इविक्ट करने का या डिस्पोजेस करने का, वो फॉलो नहीं किया गया है, तो अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप? रिकवर कर सकते हो पोजेशन, ठीक है, आप पोजेशन रिकवर कर सकते हो। तो इस सेक्शन 6 का, सेक्शन 5 में भी यही हो रहा है, सेक्शन 5 में भी आप पोजेशन ही रिकवर कर रहे हो। बट सेक्शन 6 क्या होता है, ये आपको फास्टर रेमेडी प्रोवाइड करता है। फास्टर रेमेडी इसलिए प्रोवाइड करता है बिकॉज जो सेक्शन 6 का सूट है वो सेटल्ड पोजेशन के से रिलेटेड सूट है कि आप भाई सेटल पोजेशन में थे, आपको डिस्पोजेस कराया गया है। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएगी कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 6 जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है नॉट विस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेटअप इन सच सूट। तो इवन दो अगर आप कोर्ट जो है उस सूट में टाइटल जो डिफेंडेंट है वो अपना टाइटल प्रूव कर देता है, बट अगर सेक्शन 6 सूट लाया गया है और जो प्लेंटिफ है वो सेटल्ड पोजेशन में था, ठीक है, और उसे जो डिफेंडेंट है उसने डिस्पोजेस कर दिया है, और इवन दो डिफेंडेंट के पास टाइटल है और वो प्रूफ भी कर देता है कोर्ट में, तो भी अगर प्लेंटिफ सेटल्ड पोजेशन में होगा तो कोर्ट प्लेंटिफ को वो पोजेशन रिकवर कराएगा। अब ऐसा क्यों? तो बेसिकली आइडिया ये है, इसका पर्पस ये है बेसिकली कि भाई हम लोगों को डिस्करेज करें कि भाई वो अपने हाथों में मैटर ले, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई इशू है, आपको इविक्ट कराना है, तो आपके पास कोर्ट है, राइट, कोर्ट है, आप कोर्ट जा सकते हो, वो बोल सकते हो कि भाई टीनेंसी एग्रीमेंट था और उसकी कुछ कंडीशंस थी जो टीनेंट है उसने, वो लैंडलॉर्ड बोलेगा कि टीनेंट ने वायलेट कर दी, इसलिए अब मेरे पास राइट है कि मैं उसको इविक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है ना, राइट, वो आपने प्रोसीजर तो फॉलो किया नहीं, आपने उसको इविक्ट कर दिया। तो इस केस में अगर इवन दो डिफेंडेंट के पास टाइटल हो तो भी उसके बाद भी अगर प्लेंटिफ के पास सेटल्ड पोजेशन था और वो डिस्पोजेस किया गया है तो उसको प्रॉपर्टी रिकवर कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रोकना चाहते हैं कि भाई आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, आप ऐसे ही किसी को इविक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
सेक्शन 6 में पार्टीज आर नॉट अलाउड टू कंटेंट टाइटल। ऑब्वियसली जो हमने बताया कि नॉट विस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट में बी सेटअप इन सच सूट, तो कोई टाइटल सेटअप किया जाता है उसके बावजूद भी आपको पोजेशन रिकवर कराया जा सकता है, तो इसमें आप टाइटल कंटेंट नहीं करेंगे बेसिकली। और अगर कोर्ट डिसाइड भी कर देता है टाइटल तो वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ है, जब आप सबसेक्शन 2 में जाते हैं तो नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। तो जब सेक्शन 6 सूट फाइल करेंगे तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 महीने है, और वो कब से स्टार्ट होगा, जब से आपको डिस्पोजेस किया गया है, ठीक है। आप सेक्शन 6 सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं ला सकते, ठीक है। नो अपील शैल लाई आप फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। तो जब भी आप सेक्शन 6 का सूट फाइल करते हैं और उसमें कोई ऑर्डर और डिग्री पास की जाती है तो आप उससे अपील नहीं फाइल कर सकते, ना ही आप कोई नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर भी अलाउड, तो ना ही कोई अपील फाइल कर सकते हो, ना ही कोई रिव्यू फाइल कर सकते हो। तो फिर आपके पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप रिवीजन मेंटेनेबल है तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। तो ये बोलता है कि इस सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस पर्सन को बार करे कि भाई वो अपना टाइटल इस्टेब्लिश करे उस प्रॉपर्टी को लेकर और अपना पोजेशन वापस करे। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने सेक्शन 6 सूट फाइल कर दिया है, वो डिसाइड हो गया, उसके बाद जो पर्सन है वो अपना सेक्शन 5 सूट फाइल कर सकता है। बेसिकली मान लो अगर सेक्शन 6 सूट प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो गया सेक्शन, लेकिन डिफेंडेंट के पास तो टाइटल था तो वो सेक्शन 5 सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 6 फाइल के सूट फाइल करने से सेक्शन 5 का सूट कभी बार नहीं होता, ठीक है। अब हम सेक्शन 7 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 5 और 6 मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसमें किस चीज़ की रिकवरी हो रही है? इसमें रिकवरी हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी देखने की चीज़ ये है कि जो पर्सन एंटाइटल है टू द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में वो रिकवर कर सकता है इन मैनर प्रोवाइडेड इन CPC, जो भी मैंने प्रोवाइडेड। अब इसमें जो वर्ड एंटाइटल्ड है, अगर मैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का एंटाइटल्ड हूँ का क्या मतलब होता है कि या तो मैं उसका ओनर हूँ, राइट, तो मैं उसका ओनर हूँ तो मेरे पास एंटाइटलमेंट है। लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ेंगे तो ये कहता है कि स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट सूट अंडर दिस सेक्शन। कहने का मतलब है अगर आपके पास स्पेशल या टेम्परेरी राइट टू पोजेशन है, ठीक है, स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू पोजेशन है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये सफिशिएंट है सेक्शन 7 का सूट मेंटेनेबल कराने के लिए। मतलब अगर आपका स्पेशल और टेम्परेरी राइट है तो आप सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकते हो। अब ये स्पेशल और टेम्परेरी राइट का क्या मतलब है? स्पेशल टेम्परेरी राइट का मतलब है कि आपके पास कोई प्लेज है या कोई बेलमेंट है, तो उस केस में आपने जिसको प्लेज किया है वो सूट फाइल कर सकता है, या प्लेजी है वो फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। या मान लो आप टेम्परेरी या फाइंडर ऑफ गुड्स हो, तो कहने का मतलब ये है कि कोई लॉस्ट गुड्स था वो आपको मिल गया, ठीक है, तो आपसे किसी ने पोजेशन ले लिया, तो आप सेक्शन 7 का सूट फाइल करके रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकते हो, इवन दो यू आर नॉट एन ओनर, राइट, बट आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, आपके पास टेम्परेरी राइट है तो आप सेक्शन 7 सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें एक वर्ड यूज है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मतलब कि एक असर्टेन्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिकवरी इन मैनर प्रोवाइडेड इन CPC। तो आप जो है जैसा मैनर प्रोवाइडेड है CPC में उस तरीके से रिकवर कर सकते हो। तो ये सीधे ये डायरेक्टली जो है ऑर्डर 20 रूल 10 ऑफ CPC को रेफ़र करता है। तो ये ऑर्डर 20 रूल 10 ऑफ CPC क्या कहता है कि जब भी आप डिक्री पास करोगे किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन 7 के अंडर, ठीक है, तो आपको हमेशा अल्टरनेटिव रिलीफ डिक्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई या तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी वापस करो या आपको ये जो है कंपनसेशन देना होगा प्लेंटिफ को। तो हमेशा अगर आप डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में पास करोगे तो आपको हमेशा अल्टरनेटिव रिलीफ मेंशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो प्लेंटिफ है वो सूट लेकर आएगा, तो जब भी प्लेंटिफ सूट लेकर आएगा सेक्शन 7 का, उसको हमेशा प्रेयर में एक अल्टरनेटिव रिलीफ मांगना होगा, राइट। तो हमेशा प्लेंट में जो प्लेंटिफ है वो एक अल्टरनेटिव रिलीफ क्लेम करेगा। अब यही पॉइंट है जिस पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 डिफर करता है, राइट। उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन 1 भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है कि ट्रस्टी में सू ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी अंडर दिस सेक्शन। तो एक ट्रस्टी है वो अपने बेनिफिशियरी के बिहाफ पे सेक्शन 7 का सूट बिल्कुल फाइल कर सकता है, राइट। इसके बाद हमारा सिर्फ सेक्शन 8 बचा है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
सेक्शन 8 भी इजी है, बट एक चीज़ है जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को अलग करती है, वो हमें समझनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सेक्शन 8 का सूट भी ऑफ कोर्स मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है, तो जब कोई पर्सन है जिसके पास एक पोजेशन या कंट्रोल है मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, बट वो उसका ओनर नहीं है। लेट से मेरे पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेट से मेरे पास फ़ोन है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी, बट मैं उसका ओनर नहीं हूँ, वो फ़ोन किसी और का है, बट मेरे पास पोजेशन है उसका, तो मुझे स्पेसिफिकली कंपेल किया जा सकता है कि भाई जो फ़ोन है उसका पोजेशन में डिलीवर कर दूँ किसको, जो पर्सन एंटाइटल्ड है इमीडिएट पोजेशन के, जो एंटाइटल्ड है इमीडिएट पोजेशन के, मैं उसको उस फ़ोन का पोजेशन वापस कर दूँ। ये सूट सेक्शन 8 का सूट फाइल करने के लिए आपको हमेशा इन चार ए बी सी डी में से इन चारों ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड अपनी प्लेंट में आपको प्लीड करना पड़ेगा। अब कोई भी एक, ठीक है। तो पहला ग्राउंड क्या है कि डिफेंडेंट जो है एजेंट या ट्रस्टी है प्लेंटिफ का, ठीक है, इसीलिए आप उससे कंपेल कर रहे हो कि भाई मुझे स्पेसिफिकली डिलीवर कर वो प्रॉपर्टी। यहीं पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 7 में क्या है कि आप अल्टरनेटिव रिलीफ भी क्लेम करोगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जब भी आप प्लेन फाइल करो अल्टरनेटिव रिलीफ मांगना है आपको सेक्शन 7 में। लेकिन सेक्शन 8 में ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 में आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मांगोगे कि भाई मुझे कोई अल्टरनेटिव रिलीफ चाहिए, मुझे मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का ही पोजेसन रिकवर करना है। तो उसके लिए आपको 4 केसेस में अपना केस को प्लीड करना पड़ेगा। या तो आप डिफेंडेंट जो है एजेंट है, ट्रस्टी है प्लेंटिफ का, या मनी कंपनसेशन एडुकेट रिलीफ नहीं है कि भाई जो मनी कंपनसेशन ये है वो एडुकेट रिलीफ नहीं है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए। एक्चुअल डैमेज असर्टेन नहीं कर सकती कि अगर मान लो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर मुझे रिकवर नहीं कराया गया तो जिससे उससे जो मुझे डैमेजेस होगी वो कंपनसेट नहीं की जा सकती, या उसको असर्टेन नहीं कर सकते कि भाई उसकी वजह से मुझे कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन डी है वो ये कहता है कि पोजेसन हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ से रॉन्गफुली पोजेसन ट्रांसफ़र कर लिया गया है वो डिफेंडेंट ने, वो बेसिकली फ्रॉड के थ्रू या कोई और ऐसे मीन्स के थ्रू कि वो पोजेसन रॉन्गफुली ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, उस केस में भी सेक्शन 8 का सूट फाइल कर सकते हो। तो आपको ये 4 ग्राउंड्स, इन चारों में से कोई एक ग्राउंड्स हमेशा प्लीड करना है, ठीक है। इन सेक्शन 8 सूट प्लेंटिफ डिजायर्स टू ऑब्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी इटसेल्फ एंड नॉट एनी अल्टरनेटिव रिलीफ इन फॉर्म ऑफ मनी। यही मैं कह रहा था, यही इसी पॉइंट पे सेक्शन 7 और 8 डिफर करते हैं। सेक्शन 8 में आप स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी मांगते हो, लेकिन सेक्शन 7 में क्या होता है, आप बोलते हो कि भाई या तो मूवेबल प्रॉपर्टी वापस करिए, अल्टरनेटिव रिलीफ का रिकवरी कराए मुझे, ठीक है। हाँ, इसी पॉइंट पे दोनों सेक्शन डिफर करते हैं। एक और चीज़ है इसमें, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड बाय डिफेंडेंट, मेयर प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ दैट द केस फॉल विद इन बी एंड सी शैल मैंडेटरी प्रिज्यूम दैट द कंपनसेशन नॉट एडिक्वेट रिलीफ और डैमेजेस कैन नॉट बी असर्टेड। कहने का मतलब ये है, अगर जो हमारा केस है, अगर वो इन 2 चीज़ों में फॉल करता है, ये बी और सी में, अगर आप ये 2 ग्राउंड्स प्लीड कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों ग्राउंड्स आपने अपने प्लेंट में प्लीड कर रहा है, तो द मोमेंट आपने दोनों ग्राउंड्स प्लीड किए, कोर्ट मैंडेटरीली क्या करेगा, कोर्ट जो है शैल मैंडेटरीली प्रिज्यूम करेगा कि भाई मनी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है और एक्चुअल डैमेज आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप ये सूट लेके आए हो, वो प्रिज्यूम करके चलेगा। बट इसमें एक लाइन है, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट इस फैक्ट को कॉन्ट्ररी प्रूव कर सकता है और बोल सकता है कि बिकॉज मनी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है और डैमेजेस हम असर्टेन कर पा रहे हैं, इसलिए सेक्शन 8 का सूट मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, ये डिफेंडेंट बोल सकता है। बट जब तक उसको कॉन्ट्ररी प्रूव करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ सिर्फ प्लीड कर देता है कि भाई मनी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, एक्चुअल डैमेज असर्टेन नहीं कर सकते, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि भाई एडिक्वेट रिलीफ नहीं है या असर्टेन नहीं कर सकते हम डैमेजेस, ठीक है, वो मान के चलेगा, ठीक है। ये सब 5, 6, 7, 8 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। मैं इसके नोट्स जो हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।